In this video, we are going to cover some important MCQs on Chhattisgarh Rent Control Act 2011. First question is, to what areas Chhattisgarh Rent Control Act in the first instance given extension to? All municipal areas of the state. A. District headquarters of municipal areas in the state. All municipal areas including Nagar Palika and Nagar Panchayats. And D. All of these. So as you will see section 1 of the act, the right answer would be district headquarters of municipal areas in the state. तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ही इसका एक्सटेंशन हुआ था म्यूनसिपल एरियाज़ में. सो बी इज़ द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज अकोमोडेशन मीन्स. ऑप्शन ए पार्ट ऑफ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग. पार्ट ऑफ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग. बी प्रोवाइड्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट. C provides non-agricultural land belonging to government, and D provides all of these. So if you see the definition, तो accommodation के अंदर residential and non-residential दोनों तरह की बिल्डिंग आती है. एंड accommodation में part of building and the whole building and part of it दोनों ही आते हैं. So as government building exempted है, चाहे एग्रीकल्चरल बिल्डिंग हो गवर्नमेंट की या नॉन एग्रीकल्चरल हो, whatever residential हो या नॉन रेसिडेंशियल हो. सो राइट आंसर एज पर द डेफिनेशन वुड बी ए. पार्ट ऑफ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग ये अकोमोडेशन के अंदर आएगी. गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है, सो ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज एग्रीमेंट मीन्स. सो ए प्रोवाइड्स ओनली रिटन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. B provides both oral or written agreement executed by the landlord and tenant. C provides agreement written as well as registered under the law. And D provides both A and C. So as per the definition, right answer is only written agreement executed by the landlord and tenant. So A is the right answer जो definition में दिया हुआ है. Question number 4, habitual defaulter means. So option A provides tenant who fails to pay rent in a period of 12 months on 3 or more occasions, and B provides failure to pay in 12 months on 2 or more occasions, and here 3 or more occasions and in a period of 6 months, and last option is in a period of 6 months on 2 or more occasions. तो ये as per the definition, अगर definition को अच्छे से read out किया है तो you will know the answer. 3 or more occasions पे 12 महीने में अगर tenant कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट ड्यू और रेंट पे करने में फेलियर कॉज करता है तो वो एक हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर कहलाएगा एज पर द डेफिनेशन. सो ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 इज सोशल न्यूसेंस डिफाइंड अंडर. सो 213 214 अंडर द एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल 4 ए एंड बी. सो इफ़ यू सी 213 में तो डिफाइंड है ही सोशल न्यूसेंस. साथ में इसको एलेबोरेट जो डेफिनेशन है वो शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 में दिया हुआ है, सबसे लास्ट में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो ए एंड बी बोथ करेक्ट क्योंकि डिफ़ाइन वहाँ पे भी किया हुआ है और 213 में भी इसको डिफ़ाइन किया है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए एंड बी होगा, दोनों में ही डिफाइंड. क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग्स दीज इज़ करेक्ट. सो यहाँ पे इनमें से क्या करेक्ट है ये क्वेश्चन है. ए प्रोवाइड्स रेंट शैल इंक्लूड charges for amenities unless agreed upon between the landlord and tenant. B provides rent shall be paid on 15th of the month next following the month for which it becomes due. C provides rent shall be paid on 21st of the month next following the month for which it becomes due. So D, none of these. So if you have read the provisions properly, then rent में in general charges तो amenities के जो charges है वो include नहीं होते हैं अनलेस एग्रीमेंट नहीं होता. वो जनरल यही है कि वो इंक्लूड नहीं होंगे. बट अगर एग्रीमेंट के थ्रू ये चीज़ हो जाए कि इसमें अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्री कर देते हैं कि रेंट में अमेनिटीज़ का जो चार्ज है वो इंक्लूड होगा तो अदरवाइज एज पर द रेंट, बट इन जनरल इंक्लूड नहीं होता है. तो ए तो वैसे ही इनकरेक्ट है. बी प्रोवाइड्स 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ फॉर विच इट बिकम्स ड्यू रेंट. तो रेंट का जो ड्यू होगा वो 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ में रेंट ड्यू हो जाता है. सो as per the provisions, B is a correct option. C is incorrect as it is providing 21st of the month. So as per the provision 15th of the month next following the month, ये correct option है. So B is the right answer. Now 7th, who can be chairman of rent control tribunal.
तो ट्रिब्यूनल का कौन चेयरमैन हो सकता है एज पर द एक्ट? ए प्रोवाइड्स रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, बी प्रोवाइड्स रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपीरियर सुपर टाइम स्केल, सी प्रोवाइड्स सर्विंग डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल, डी एनी ऑफ दीज. So, as per the provision, retired judge of High Court, retired judge of district judge, super time scale, serving district judge, not below the rank of super time scale. तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है. तो डी एस डी राइट आंसर जो प्रोविज़न में दिया हुआ है एक्ट के अकॉर्डिंग, इनमें से कोई भी चेयरमैन हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 8, हु कैन बी रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रार कौन हो सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? तो A provides any officer of deputy secretary rank to the state government, B provides civil judge class 1, C class 2, civil judge class 2, D either A or B. So as per the provision, A और B में से कोई भी हो सकता है. Eligibility या तो civil judge class 1 होना चाहिए या officer of deputy secretary rank to the state government. So right option is D. 9th is headquarter of Rent Control Tribunal is located in Bilaspur, Raipur, Bhilai, Raigad. So correct answer is B, Raipur. 10th question is who can be a rent controller? So option A provides officer not below the rank of deputy tehsildar, B officer not below the rank of deputy collector, C officer not below the rank of collector, and D officer not below the rank of SDO. So as per ये डिप्टी तहसीलदार जैसा तो कोई पोस्ट ही नहीं होता है. B provides officer not below the rank of deputy collector. So this is the as per the provision, डिप्टी कलेक्टर की रैंक से नीचे की कोई रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट एज अ रेंट कंट्रोलर. तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन ज़रूरी है कि मिनिमम डिप्टी कलेक्टर की रैंक का तो होना ही चाहिए जो रेंट कंट्रोलर बनेगा. सो एज पर द प्रोविज़न deputy collector not officer not below the rank of deputy collector, option B is the right answer. Question number 11, which amongst these are the powers of controller? Which amongst these are the powers of rent controller? So इनमें से क्या powers हैं? A provides securing the rights of landlords and tenants, B reconciling disputes between landlord and tenant, C enforcing the obligations enjoined upon landlords and tenants, D all of these. सो एज़ पर द प्रोविज़न जिसमें प्रोवाइड किया गया है एक्ट में, ये सारी ही पावर्स रेंट कंट्रोलर के पास होती हैं. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज आर द पावर्स ऑफ रेंट कंट्रोलर. क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसीडिंग्स ऑफ रेंट कंट्रोलर टू बी कंक्लूडेड विद इन. सो ऑप्शन ए इज 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस, 6 months, 18 months, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस. सो एज़ पर द एक्ट में ये प्रोवाइड किया है तो 6 months के अंदर अंदर प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होनी चाहिए रेंट कंट्रोलर की फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस. सो राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग्स दीज इज करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल बी बाउंड बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय सिविल प्रोसीजर कोड, बी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल बी बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सी ट्रिब्यूनल कैन नॉट लेट डाउन इट्स ओन प्रोसीजर, D all of these are correct. So if you see as per the provision, Rent Control Tribunal shall be bound by the CPC. ऐसा नहीं है, इसका जस्ट उल्टा है. प्रोविज़न में ये लिखा है कि ट्रिब्यूनल इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय CPC. सो A ऑप्शन इज इनकरेक्ट. B Rent Control Tribunal shall be bound by principle of natural justice. So this is correct as per the provision कि natural justice से तो bound होगा ही ट्रिब्यूनल. C provides tribunal cannot let down its own procedure. So this is also wrong. अपना प्रोसीजर ट्रिब्यूनल लेट डाउन कर सकता है, ऐसा प्रोविज़न में लिखा हुआ है. सो ऑल ऑफ दीज इज वुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी. नेचुरल जस्टिस से तो बाउंड होगा ही ट्रिब्यूनल. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर अंडर कोड? सो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में से इनमें से कौन सा वन ऑफ द मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है? सो ए प्रोवाइड्स डिलीवरी ऑफ पोजेशन, बी अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट एज कमिश्नर, सी अटैचिंग अकाउंट और सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड डी ऑल ऑफ दीज. सो एज पर द प्रोविजन इट इज़ प्रोवाइडेड, इनमें से कोई भी मोड हो सकता है. ये सारे ही ऑप्शन एक्ट में प्रोवाइड करे गए. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर एज पर द प्रोविजन. क्वेश्चन नंबर 15, tenant must vacate the accommodation within. So option A 3 months from the date of issue of certificate for recovery, B 6 months, C 2 months, and D 1 month
फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी. सो एज पर द प्रोविज़न 3 मंथ्स के अंदर अंदर लाइबिलिटी है टीनेंट की कि वो वैकेट करेगा अकोमोडेशन को जब उसके वेकेशन का उसके एविक्शन का ऑर्डर हो चुका है, और जिस दिन से उसका डेट रिकवरी का सर्टिफिकेट इशू हो गया उससे 3 महीने के अंदर उसको वैकेट करना होगा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 3 मंथ्स. क्वेश्चन नंबर 16, मीन प्रॉफिट पेबल इन केस पोजेशन इज नॉट रिकवर्ड एंड द अकोमोडेशन इज रेसिडेंशियल. तो जब वो टाइम पीरियड के अंदर जो 3 मंथ्स के अंदर वैकेट करना है ऐसा वैकेशन नहीं करता है टीनेंट, तो ही शैल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट. तो मीन प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा ये क्वेश्चन है. सो एज पर द प्रोविज़न जब अकोमोडेशन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया था तो 2 टाइम्स द रेंट होगा. 3 टाइम्स द रेंट नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ओनली 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रेंट उसको मीन प्रॉफिट देना होगा जब वो वैकेट नहीं करता है एज पर द प्रोविज़न. सो मीन प्रॉफिट 2 टाइम्स द रेंट जब अकोमोडेशन रेसिडेंशियल पर्पस से लेट आउट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 17, मीन प्रॉफिट पेबल इन केस ऑफ पोजेशन नॉट रिकवर्ड एंड द अकोमोडेशन इज़ नॉन रेसिडेंशियल. जब नॉन रेसिडेंशियल है और पोजेशन नहीं दी है, अकोमोडेशन को वैकेट नहीं किया है एज रिक्वायर्ड, तो मीन प्रॉफिट का क्या अमाउंट होगा. सो जब नॉन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है तो एज पर द प्रोविज़न 3 टाइम्स द रेंट, 3 टाइम्स द रेंट अमाउंट एज अ मीन प्रॉफिट पे करना होगा टीनेंट को, लैंडलॉर्ड को. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 3 टाइम्स द रेंट. Question number 18, mean profit payable in case possession not recovered and the certificate for recovery of immediate possession is issued. So जब mean profit कब होगा, जब possession रिकवर नहीं हुई और immediate possession के लिए सर्टिफिकेट इशू किया गया था कि immediate possession को रिकवर किया जाए, तो ऐसे केस में भी 3 टाइम्स द रेंट का मीन प्रॉफिट पे करना होगा. सो राइट आंसर एज पर द प्रोविज़न 3 टाइम्स द रेंट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, रेंट कंट्रोलर shall dispose of the execution proceedings within how many days from the service of notice. So service of notice से कितने दिन के अंदर proceedings को dispose of करना होगा rent controller को. So as per the provision options are 30, 15, 60, but as per the provision 45 days के अंदर ये proceedings को dispose of करना होगा execution proceedings को. सो यू रिमेंबर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को इन्होंने पूछा है कि कितने दिन में. सो राइट आंसर इज 45 डेज एज पर द प्रोविज़न. क्वेश्चन नंबर 20, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट प्रोवाइडेड अंडर. सो कौन सा सेक्शन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करता है? सो 11, 9, 13, 12. राइट आंसर इज सेक्शन 12. सेक्शन 12 में ही 4 शेड्यूल्स के बारे में बताया गया कि 4 शेड्यूल्स हैं एक्ट में, जिसमें फर्स्ट 2 में राइट्स बताएंगे. फर्स्ट शेड्यूल टीनेंट के राइट प्रोवाइड करता है, सेकंड लैंडलॉर्ड के राइट प्रोवाइड करता है, थर्ड में लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन है, फोर्थ में टीनेंट के ऑब्लिगेशन है. सो ये सेक्शन 12 में दिया हुआ है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. सो 21 इज राइट्स ऑफ टीनेंट प्रोवाइडेड. सो अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन 12 में प्रोवाइड करा गया, तो एज पर 12 शेड्यूल 1 में ही टीनेंट के राइट है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन 22, लैंडलॉर्ड के राइट्स किस शेड्यूल में है? सो फर्स्ट में टीनेंट के राइट है, सेकंड में लैंडलॉर्ड के राइट है, थर्ड में ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड का और टीनेंट का फोर्थ में ऑब्लिगेशन है, शेड्यूल 4 में. सो राइट आंसर लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं, तो बी इज दी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ क्लैश ऑफ एनी इंटरेस्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट और एनी डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड टू द लैंडलॉर्ड, बी, बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड टू टीनेंट, सी, डाउट शैल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, डी, स्ट्रिक्ट प्रूफ शैल बी रिक्वायर्ड. सो इफ़ यू हैव रेड दिस प्रोविजन प्रॉपरली, जिसमें दिया हुआ है, तो राइट आंसर इज ऐसे केस में जहाँ पर डाउट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट, तो यहाँ पर बेनिफिट टीनेंट को ही जाता है. सो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन एज पर द प्रोविजन. Question number 24, any doubt regarding returning possession of accommodation to the tenant, benefit shall be granted to. जब possession को रिटर्न करने के बारे में कोई डाउट होता है तो बेनिफिट किसको जाएगा? सो ए प्रोवाइड्स लैंडलॉर्ड, बी प्रोवाइड्स टीनेंट, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस. सो एज पर द प्रोविजन ऐसे केस में लैंडलॉर्ड को ही बेनिफिट ग्रांट होगा. सो राइट करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन ए लैंडलॉर्ड. क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट प्रोवाइडेड इन. सो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के ऑब्लिगेशन के बारे में क्वेश्चन है. सो 3 और 4, 2 and 4, 1 और 2, तो ये इनमें से क्या सही सीक्वेंस है? सो ए प्रोवाइड्स 3 and 4. सो 3 and 4 ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि थर्ड में लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन है एंड फोर्थ में टेनेंट के ऑब्लिगेशन है. सो रेस्पेक्टिवली 3 and 4 इज़ द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So these were some MCQs on छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट. एंड इसके बाद जो भी पॉसिबल अदर MCQs पॉसिबल होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इन अ सेपरेट वीडियो. और अगर आप छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के MCQs देखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियो. एंड छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट को ही आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बाय ऑल्सो हिटिंग द बेल आइकन सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.